آج ہم یسوع مسیح کا جنم دن منا رہے ہیں، سالگرہ۔ ہم اس لیے جمع ہیں کہ ان واقعات پہ غور کریں جو یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے تعلق سے بائبل مقدس میں درج ہیں۔ اور میں آج کچھ ایسی سچائیاں پیش کروں گا جن کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے، کچھ ایسی سچائیاں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان کا تعلق کرسمس کی سٹوری سے ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ کرسمس ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے، لائٹنگ کرنی ہے، اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں، اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا ہے، ہیپی کرسمس کہنے کے لیے جانا ہے، گفٹ دینے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اچھا ہے، لیکن کرسمس ذرا اس سے ہٹ کے بھی ہے۔ آج میں کچھ غیر مانوس انفیملیئر چیزوں، شخصوں اور جگہوں کے بارے میں بات کروں گا جن کا تعلق کرسمس سے ہے، جنہیں لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ تو آج میں وہ حوالہ پڑھوں گا جو کرسمس کے موقع پہ نہیں پڑھا جاتا۔ کرسمس کے موقع پہ عموماً ہم لوکا کی انجیل کا پہلا باب، دوسرا باب، متی کا دوسرا باب وہاں سے پڑھتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا حوالہ پڑھوں گا جو آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ اس کا تعلق تو کرسمس سے ہے ہی نہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ یا لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ مطلب خدا نے ہمیشہ ایسے اشخاص، ایسے واقعات، ایسی جگہوں کو چن لیا ہے جو دوسروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن خدا نے انہی کے وسیلہ سے دنیا کے لوگوں کو جو انہیں بیوقوف کہتے ہیں انہیں بیوقوف بنا دیا ہے۔ خدا اپنے مقصد کے لیے کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ خدا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے غریب، ماڑے لوگ، ماہر لوگ، ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو کرسمس کی سٹوری میں ایسے بہت سے اشخاص ہیں، بہت سی جگہیں ہیں جو ہم عموماً نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیے ان پہ غور کریں۔ تو ان میں جو فراموش کردہ گمنام کردار اور اشخاص ہیں اور جگہیں ہیں، ان میں نمبر 1 ہے ناصرت۔ کہیے ناصرت۔ گڈ نیوز چرچ کہاں پہ واقع ہے؟ ناصرت روڈ پہ۔ تو آج جس پہلی جگہ کے بارے میں بات کروں گا وہ ناصرت۔ مریم اور یوسف ناصرت کے رہنے والے تھے۔ یہ غریب لوگوں کا گاؤں تھا، اور میجورٹی جو ہے وہ پسماندہ تھی، اور ایسے لوگ یہاں پہ رکھتے تھے جنہوں پنجابی کہتے ہیں کمی قسم کے لوگ، ماڑے لوگ وہاں رہتے تھے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی، معجزے کرنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو کہا گیا یہ یسوع ہے جو ناصرت کا رہنے والا ہے۔ تو پھر سوال ہوا، کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ جہاں سے کوئی توقع ہی نہ ہو، خداوند یسوع مسیح اس جگہ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب، اس کی 45ویں اور 46ویں آیات، یعنی کہ نتنیل نے فلپس سے مل کر اس سے کہا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، ناصرت
नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चलकर देख ले। फिलिप्पस नतनेल को दावत दे रहा था कि वो जिसका जिक्र नबियों ने किया है वो पैदा हो चुका है, वो मुनादी करता है, वो बदरुओं को निकालता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो नेचर के भी अगेंस्ट चल सकता है, वो पानी के ऊपर भी चल सकता है, हवा और पानी को भी थमा सकता है। जब फिलिप्पस ने ये बातें की तो नतनेल ने कहा ये नासरत से ये कैसे हो सकता है? नारोवाल के छोटे छोटे गांव, सियालकोट के छोटे छोटे गांव से खुदा ने बड़े बड़े खादम तैयार किए जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में और इंडिया में बेदारी लेकर आए और मसीहत का प्रचार किया और मसीहत फैल गई। और ज्यादातर लोग जो मुबश्शिरीन थे वो सियालकोट के छोटे छोटे गांव के रहने वाले थे। ऐसे ही सवाल किया क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और यीशु मसीह जब पैदा हुआ, आप जानते हैं कि मजूसी आए, मजूसियों को कहा गया कि जब यीशु मिल जाए हमें भी खबर देना। ये फ्रॉड था उसका, हेरोदेस का। और यीशु मसीह की हिफाजत के लिए हुक्म ये हुआ जिब्राइल फरिश्ते की तरफ से कि बच्चे को लेके मिस्र चले जाओ। तो मिस्र क्यों चले गए? क्योंकि हेरोदेस उसकी जान का ख्वाह था। और फिर जब हेरोदेस मर गया तो फरिश्ते ने यूसुफ से कहा अब वापस जा सकते हो। अब वो वापस बैतलहम में नहीं आए, जहां के रहने वाले थे, रहायशी थे, नासरत में आए। और यीशु ने अपना बचपन नासरत में गुजारा है, अपना बचपन, जवानी भी 30 साल तक की उम्र में नासरत में यीशु मसीह रहा है और वही में उसकी रहायश थी। मत्ती की इंजील 2 बाब 23 या लिखा है और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। नबियों की मार्फत कहा गया था कि कोई आएगा वो नासरी कहलाएगा। और वो बात पूरी हुई, वो नासरत का रहने वाला था। और फिर जो शागिर्दों ने पहला मोर्चा किया, अब गौर से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह ने मनाती की इस जमीन पे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पे चला गया। और आसमान पे जाने के बाद शागिर्दों ने मनादी करनी शुरू की। और शागिर्दों के वसीले से जो पहला मोर्चा हुआ, एक लंगड़ा शिफा पाया, उसके लिए पहली दफा क्या कहा गया? पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देता हूं, उठ यीशु नासरी के नाम से चल। किस नाम से? बैतलहम वाला नहीं, यरूशलेम वाला नहीं, वरना लोग कहते बड़े शहर है। और क्या कहा? नासरी के नाम से उठ और चल के। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो खुदा छोटी जगहों को, गुमनाम जगहों को, गैर मारूफ जगहों को अपने जलाल के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बोले हालेलुया। लफ्ज नासरत जो है इसका मतलब है कॉम्पल। कॉम्पल जो है ये नासरत का मतलब है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। तो इसका मतलब है इस कॉम्पल में से एक कॉम्पल निकलेगी। बोले हालेलुया। यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, यीशु मसीह जो सारी दुनिया को निजात देता है। और आप पूरी दुनिया में आपको हर तरफ यीशु मसीह के मानने वाले निजात याफ्ता लोग नजर आएंगे। किस वजह से? उस यीशु की वजह से जो नासरत का रहने वाला था। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं ऐ बदरू, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, उस शख्स में से निकल जा। ऐ बीमार, तुझे यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, सेहतमंद हो जा। यीशु नासरी, कहिए यीशु नासरी, यीशु नासरी। छोटे शहर के साथ निस्बत है यीशु की। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है बैतलहम। ये भी एक आम सा छोटा सा शहर, अगर इसकी हिस्ट्री यह है कि दाऊद बादशाह का ये शहर है, लेकिन यहूदा जो सूबा है उसमें जो बैतलहम है उसका नाम नहीं आता।
गिनती में। अगर कहें पंजाब के बड़े बड़े शहर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे जी रावलपिंडी, मुल्तान, झेलम और लाहौर, ये इनका नाम लेंगे। और अगर आप छोटे से शहर का नाम ले लें पत्तों की, तो वो बड़े शहरों में शामिल होने के काबिल ही नहीं है। छोटे शहरों को तो कोई मतलब वो बड़ी शहरों की लिस्ट में नहीं डालते। तो बैतलहम का नाम जो है एक छोटा सा नाम है और यहूदा के हजारों शहरों में सबसे छोटा है। आइए पढ़ते हैं मीका की किताब 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। यहां लिखा है, ए बैतलहम अफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। बोले हालेलुया। तुझ में से एक सरदार निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका मस्तर और जमाना साबिक से हम कदीम याम से है। बोले हालेलुया। तो कहा गया बैतलहम अफ्राता, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। यीशु पैदा कहां हुआ? कहां पैदा हुआ? बैतलहम की एक चर्च में पैदा हुआ। नासरत का रहने वाला, लेकिन पैदा कहां हुआ? बैतलहम में। और हजारों साल पहले मीका ने पेशन गोई कर दी थी कि बैतलहम एक छोटा सा शहर है जो हजारों में शामिल होने के काबिल नहीं है, उसमें से एक सरदार निकलेगा। हालेलुया। और वो सरदार कौन है? नबियों का सरदार, हमारा सरदार, हमारा सरदार का है। हालेलुया। बोले हालेलुया। वहां से एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो पूरी दुनिया में उसका कोई साथी नहीं है। वो यकता है, वो बेमिसाल है, वो लाजवाब है और उस जैसा कोई है नहीं, उसका कोई साथी नहीं है। लोग इस दुनिया के बावजूद ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना दुआओं का जवाब देते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो इस छोटे से शहर में पैदा हुआ, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो छूता भी है, वो दुआओं का जवाब भी देता है और वो जल्द आने वाला भी है। आपकी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। हालेलुया। और वो बैतलहम में पैदा हुआ एक छोटे से गांव में। हालेलुया। और आज दुनिया में बैतलहम का नाम है। बोले हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यहां इस शहर के दो नाम है। इस आयत को देखिए सामने, लेकिन है बैतलहम अफ्राता, अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। कितने नाम है इसके? बैतलहम अफ्राता। तो अफ्राता जो है ये दरअसल इसका बैतलहम का ही नाम है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। और जो अफ्राता है उसी का नाम है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बल्कि अभी बता देता हूं कि पैदाइश की किताब में अफ्राता का लफ्ज 48वें बाब में आया है। पैदाइश की किताब 48वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि बैतलहम का नाम अफ्राता भी है। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। फिर कहिए हालेलुया। तो बैतलहम अफ्राता जो है उसी का नाम है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बैतलहम में पैदा हुआ। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर और अफ्राता का मतलब है फलदार। तो रोटी के घर में जिंदगी की रोटी पैदा हुई। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। रोटी के घर में जिंदगी की रोटी देने वाला पैदा हुआ। बोले हालेलुया। और अफ्राता जिसका मतलब फलदार है, यीशु मसीह ऐसा फल है जिसका फल हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। रोटी के घर में पैदा हुआ, फलदार शहर में पैदा हुआ और फलों का खालिक पैदा हुआ। ऐसा शहर जहां, सुन लीजिए, ऐसा शहर बैतलहम जहां यीशु मसीह को लिफ्ट नहीं दी गई, जहां मां बाप की कदर नहीं की गई, यूसुफ और मरियम की हकारत की गई, उनको एक सराय में जगह नहीं दी। ऐसा शहर असूली तौर से तो होना चाहिए कि हम बैतलहम को याद भी ना करें कि बैतलहम ऐसा शहर, हमारे खुदावंद को पैदा होने के लिए कोई अच्छी जगह ही नहीं दी, लेकिन ये पेशगोइयों के मुताबिक था। यीशु मसीह आपके लिए चलने में पैदा हुआ। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। फिर कहिए हालेलुया। दो जगहों के नाम बताए हैं, अब एक शख्स का नाम बताऊंगा।
और वह मुकद्दसा मरियम। एक गरीब खातून, छोटे से गांव नासरत की रहने वाली, इतनी गरीब और उसका शोहर भी इतना गरीब कि उनके पास बर्रा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब यीशु मसीह 1.25 महीने का हुआ, 40 दिन का, तो शरीयत के मुताबिक यीशु को मुकद्दसा मरियम और यूसुफ हैकल में लेकर गए और वहां कुर्बानी के लिए उन्होंने वहां लिखा है कुमरियों के कबूतर के 2 बच्चे या कुमरियों का एक जोड़ा चढ़ाया जाए। और अहबार की किताब के 12वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई बर्रा देने के काबिल ना हो, गरीब हो, तो कुमरियों के बच्चे ले आए। तो ये गरीब थे, तो खुदा ने गरीब लड़की के ऊपर तवज्जो दी। बोले हालेलुया। आप अपने आप को गरीब ना, कल भी मैंने कहा था गरीब ना कहे। मुकद्दसा मरियम भी बहुत गरीब थी, लेकिन वो मालामाल हो गई दौलत से। हालेलुया। वो निश्वा के घर जाके कहती है, खुदा ने मेरी पस्त हाली में नजर की, खुदा ने मुझे पस्त हाल को इतना बुलंद किया कि जो मगरूर थे उनको पाश करके रख दिया। बोले हालेलुया। फिर गई हालेलुया। तो उसने मुकद्दसा मरियम को इस्तेमाल किया, जो अपने आप को कहती है खुदा ने मेरी पस्त हाली पे नजर की। आइए देखते हैं लूका 1 बाब और उसकी 48वीं आयत और 1 बाब उसकी 52 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि उसने अपनी बंदे की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। हालेलुया। वो कह रही है कि जो इख्तियार वाले हैं, साहिब इख्तियार हैं, खुदा ने उनको तख्त से गिरा दिया और मुझ पस्त हाल पे नजर की कि मैं नजात दहिंदा की मां बन गई। बोले हालेलुया। मुकद्दसा मरियम की शान में एक ताली बजा दीजिए। एक गरीब खातून, गैर मालूम खातून, जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और जल्दी से एक और जगह का मालिक, सराय, इग्नोर्ड। लोग जब बात करते हैं कि सराय का मालिक इसने क्या किया, बादशाहों के बादशाह ने पैदा होना था और सराय के मालिक ने उन्हें जगह ना दी। आज मैं सराय के मालिक के बारे में बात करूंगा जो इग्नोर किया जाता है। सराय में जगह नहीं दी उसे। एक कपल को कमजोर समझा, गरीब समझा और कहा कि ये मुझे किराया नहीं दे सकेंगे। शायद जगह भी नहीं थी, वो रेंज कर भी सकता था, मालिक था, शायद किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट करता, लेकिन उसने इनकार किया। मैं उसके इनकार पे बात करूंगा। सराय का मालिक जो है उसका इनकार बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वो इनकार ना करता तो फिर हम कहते कि खुदावंद यीशु मसीह एक सराय में पैदा हुआ, एक होटल में पैदा हुआ, एक खूबसूरत कमरे में पैदा हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। इसका मतलब है उसका इनकार जो है वो इस बात की दलील है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आना ही जानवरों के चाहे में था, आना ही अस्तबल में था, ताकि गरीब अमीर सब वहां पे आ सके। अगर वो सराय में होता तो शायद डरिए वहां अप्रोच ना कर सकते। अगर वो सराय में पैदा होता, उस कमरे में शायद इतनी गुंजाइश ना होती, लेकिन ये चरनी खुली डुली जगह, जानवर चारों तरफ और इधर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह को मिल रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। उसके मालिक का इनकार भी बड़े अहमियत का अमल है। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके लिए कोई इनकार हो जाए किसी जगह पे, तो याद रखें उसके पीछे खुदावंद की मर्जी है। खुदा बेहतरी चाहता है। कभी कभी किसी अच्छी जगह से, नौकरी से इनकार हो जाए, आपने बड़ी उम्मीद लगाई हो, आपने बड़ा सोचा हो मैं फलां जगह अप्लाई करूंगा, और वहां से आपको पूरी उम्मीद हो, आप टेस्ट में कामयाब हैं, इंटरव्यू में कामयाब हैं, सिफारिशें भी अच्छी हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, अचानक इनकार हो जाए। याद रखें इनकार भी आपके फायदे में है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का दरवाजा जो वो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया के दरवाजे जो है अगर खुले भी है वो बंद हो सकते हैं, उसका दरवाजा हमेशा खुला है। बोले हालेलुया। इनकार में ना जाएं, परेशानी में ना जाएं। आपको पैसों की जरूरत है, आपको कोई माल की जरूरत है, कुछ भी है, अगर इनकार हो जाता है, याद रखें खुदावंद आपके लिए बेहतर प्लान रखता है। बोले हालेलुया। कहीं हालेलुया। चरनी में जगह दी,
जानवरों की चारागाह में, बदबूदार जगह पे, जहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, और फिर आसपास कोई मददगार औरत भी नहीं, क्योंकि एक बच्चे के जन्म देने के लिए कम से कम एक खातून का होना जरूर है। वहां कुछ भी नहीं था, जानवर थे, और यीशु मसीह वहां जन्म हुआ। शायद सराय में कोई खातून मददगार भी मिल जाती, लेकिन यीशु का पैदा होना जरूरी था एक गरीब जगह पे। वो आपके लिए गरीब जगह पे आया। तो मैंने बात की है सराय के मालिक के इनकार पे, हम सोचते हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि यीशु मसीह आपके लिए अदना जगह में पैदा हुआ। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया, बोले हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। रोमियो 8वें बाब की 28वें आयत में लिखा है कि खुदा हम सब के लिए भलाई पैदा करता है, लिखा है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इनकार हो जाए भलाई है, ठीक है, एक पोजीशन जाती रहे आपके लिए भलाई है, क्योंकि खुदा अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। फिर सितारे की बात बहुत कम लोग करते हैं, सिर्फ सितारा दिखाते हैं कि मजूसी की रहनुमाई में आया एक सितारा, ऐसा सितारा जिसे खुदा ने मुकर्रर किया कि वो लोगों की रहनुमाई करे, लोगों को यीशु के पास लेके आए। संडे स्कूल में हम गाते थे जब बच्चे थे, बच्चों तारे की मानत तुम चमको, और फिर ये भी गाते थे प्यारे पाकिस्तान में लाएंगे हम नूर, उसका सब तेरा होगा जल्दी दूर। तो बच्चे संडे स्कूल में गाते थे कि हम सितारे हैं, हम रोशन हैं। वो सितारा मजूसियों को यीशु के पास लेके आया। आपके मैं भी यीशु मसीह का सितारा हूं, कहिए मैं भी यीशु मसीह का सितारा हूं। मैं भी लोगों को यीशु के पास लाऊंगा, भटके हुओं का रहनुमा बनूंगा। तो सितारा हमें सबक देता है कि अगर मैं बेजान होकर जानदारों को मसीह के पास ला सकता हूं, तो आप जो जानदार हैं आपके भी लोगों को मसीह के पास ला सकते हैं। बोले हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। और आज का पैगाम मैं खत्म करने से पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, मत्ती 5:16। हाँ जी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। सितारे बनकर, नूर बनकर, जैसे सितारा मजूसियों को लेके आया, हमारी रोशनी लोगों के साथ चमके और हम लोगों को मसीह के पास लाने का जरिया बने। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और सितारे को सुने थोड़ा सा धोखा दिया मजूसियों ने जब महल देखे, बड़े बड़े बादशाह का दरबार देखा, हेरोदेस का, कहां चले गए, लेकिन सितारा खड़ा रहा। कहने लगा कि मैं तो चला हूं, मैं इतनी दूर से लेके आया हूं, मैं पहुंचाऊंगा सही जगह पे, तुम क्यों रुक गए? और वो वहां खड़ा रहा। गलत हो गए मजूसी, हेलो मजूसी गलत हो गए, सितारा खड़ा रहा। और जैसे मजूसी वापस आए, सितारा फिर उनके आगे आगे चला, और यीशु मसीह जहां था, जिस घर में था, ठीक उस जगह पे लेके आ गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इसको इग्नोर ना करें। चलो भाई, मैंने पहले बात की थी, बड़े गरीब लोग हैं, पहला पैगाम ही उनको मिला निजात का, खुशखबरी मिली ही उनको है, और पहले वही शख्स है जो मसीह को देखने के लिए गए हैं। तो आज आपके लिए पैगाम है कि खुदा गैर मालूम मामूली लोगों को अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है।